ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा में 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। उनका परिवार संथाल जनजाति से था, जो अपनी परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन गरीबी और उपेक्षा से जूझ रहा था। उनके गांव का जीवन सीधा साधा था, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। इन कठिन परिस्थितियों के बीच द्रौपदी एक ऐसी बच्ची थी जिनके दिल में शिक्षा और बदलाव का सपना था। बहुत कम साधनों के बावजूद द्रौपदी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। Respected Honorable President of India, distinguished dignitaries, my colleague officers and dear officer trainees, a very good morning and namaskar. उनके माता पिता ने शिक्षा का महत्व समझा और उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। भले ही स्कूल तक जाने के लिए उन्हें नंगे पांव लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने परिवार की पहली ऐसी बेटी थी जिसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और यह उनके जीवन का एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय उनके समुदाय की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना दुर्लभ था, लेकिन द्रौपदी की इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा उनके सशक्तिकरण की कुंजी है और अपने समुदाय को ऊपर उठाने का एक माध्यम भी। will have a profound impact on the nation building process, since prudent financial management is essential for enhancing our defense capabilities and safeguarding national interests. I urge you to leverage cutting-edge technologies and innovative methods to streamline auditing and accounting processes. You also need to foster synergy with our defense agencies to अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया। शिक्षा को उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सबसे सशक्त माध्यम माना। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने अनगिनत बच्चों को प्रेरित किया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अपने लोगों की समस्याओं को गहराई से समझती थी और उन्हें बड़े स्तर पर हल करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। expenditure on the country's economy. By promoting your job with utmost dedication, you will not only strengthen the financial management of our armed forces, but also contribute significantly to the nation's security and prosperity. Dear professionals of Indian Telecommunication Service, द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में प्रवेश योजनाबद्ध नहीं था। यह उनके समुदाय की सेवा करने की इच्छा से उपजा था। 1957 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। स्थानीय प्रशासन में उनके कार्य ने यह दिखाया कि वह अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कितनी समर्पित थी। जल्द ही वह नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी और उनके प्रयासों को व्यापक पहचान मिलने लगी। उनकी नेतृत्व शैली सादगी, सहानुभूति और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भरी रही। India Stocks has contributed to financial inclusion by providing secure digital infrastructure. By enhancing digital connectivity through telecom infrastructure, you can help in the inclusive development of the nation by using technology to empower citizens and enhance the overall quality of life. You should focus on the rural and remote areas for bridging the digital divide, thereby facilitating the socio-economic development of the country. You have an important role to play in achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. You need to focus on research and development in telecom sector to ensure the safety and security of the telecommunication network.
a competitive landscape ensuring availability of new communications technologies is central to our economic growth. Simultaneously, you should also ensure robust cybersecurity measures to safeguard India's digital infrastructure. India is moving ahead towards the development of 6G technology, a part of Bharat's 6G vision, based on principles of affordability, sustainability, ubiquity, by boosting greater connectivity. 6G network will enable the development of smarter cities, transform healthcare delivery, and boost productivity and competitiveness. You must keep pace with the advancing technologies and ensure seamless network coverage. 2000 में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे विभागों का कार्यभार संभाला। द्रौपदी अपनी जमीनी जुड़ाव और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन जहां उनकी पेशेवर जिंदगी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी ने उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारा। उन्होंने अपने पति श्याम चरण मुर्मू और 2 बेटों को खो दिया। यह दुख असहनीय था, लेकिन इसने उनके जज्बे को तोड़ा नहीं। उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से खुद को मजबूत किया। उनकी आस्था और सहनशक्ति उनके चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। Deprived and underprivileged sections of the society while taking decisions. Your thoughts, decisions, and actions will significantly influence the future trajectory of the nation. I am confident that you will rise to the challenges, leveraging your skills, expertise, and creativity to make a meaningful impact. I extend my best wishes to you all for a bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय जगन्नाथ। नमस्कार। राष्ट्रपति हेबा परे निज माटी को यह मोर प्रथम आगमन। यही अवसर में आपण माननको हार्दिक अभिनंदन, स्नेह और श्रद्धा मते अभिभूत करिस। निज माटीर मोह परे भिन्नता अछि। निज राज्यर पानी और पवनर आकर्षण भिन्न एवं निज अंचलर दिग दिगंतर सौंदर्य नियारा। तेणु आज ओडिशा आछि मु अत्यंत आनंदित। महामहिम राष्ट्रपति आपनको आम विद्यालय को सुस्वागत। धन्यवाद।
2015 में द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया जब वह झारखंड की राज्यपाल बनी। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला थीं। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल आदिवासी कल्याण, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाना गया। उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए काम किया और सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। उनका नेतृत्व सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं था। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार काम किया। उनके प्रयासों ने न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा पैदा की। 2022 में द्रौपदी मुर्मू का सफर एक और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। उनकी उम्मीदवारी कई मायनों में ऐतिहासिक थी। यदि चुनी जाती तो वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह इस पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी। शपथ ग्रहण के दौरान पूरा देश गर्व से भर गया। एक छोटे से आदिवासी गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनका सफर अद्वितीय था। यह उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। वह अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है और सादगी, परिश्रम और समुदाय की सेवा के मूल्यों की बात करती है। उनका राष्ट्रपति बनना न केवल उनका व्यक्तिगत मील का पत्थर है, बल्कि यह भारत की विविधता का उत्सव और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए उम्मीद की किरण है। द्रौपदी की कहानी एक व्यक्ति की यात्रा से कहीं अधिक है। यह देश की प्रगति, सीमाओं को तोड़ने और हर उस लड़की के सपने की कहानी है जो दूरस्थ गांवों में बड़ी होती है और ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखती है। यह याद दिलाती है कि महानता परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उन पर काबू पाने के साहस से परिभाषित होती है। आज भारत की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू करोड़ों लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं साथ लिए चल रही है। वह महिलाओं की ताकत, शिक्षा की शक्ति और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप दृढ़ निश्चय, सहनशक्ति और सेवा के प्रति समर्पण के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा कितना परिवर्तनकारी हो सकती है, प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है और हाशिए पर खड़े समुदायों को ऊपर उठाने की कितनी ज़रूरत है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी हमेशा उम्मीद, सहनशक्ति और मानव आत्मा की विजय का प्रतीक बनी रहेगी। वह केवल एक नेता नहीं है, वह प्रगति का प्रतीक है। आदिवासी समुदायों और महिलाओं के लिए प्रेरणा है और भारत की विविधता, दृढ़ता और सेवा की भावना का चमकता हुआ उदाहरण है। India Stacks has contributed to financial inclusion by providing secure digital infrastructure. By enhancing digital connectivity through telecom infrastructure, you can help in the inclusive development of the nation by using technology to empower citizens and enhance the overall quality of life. You should focus on the rural and remote areas for bridging the digital divide, thereby facilitating the socio-economic development of the country. You have an important role to play in achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. You need to focus on research and development in telecom sector to ensure the safety and security of the telecommunication network. A competitive landscape ensuring availability of new communications technologies is central to our economic growth. Simultaneously, you should also ensure robust cybersecurity measures to safeguard India's digital infrastructure. India is moving ahead towards the development of 6G technology, a part of Bharat's 6G vision, based on principles of affordability, sustainability, ubiquity. By boosting greater connectivity, 6G network will enable the development of smarter cities, transform
healthcare delivery, and boost productivity and competitiveness. You must keep pace with the advancing technologies and ensure seamless network coverage. Dear young officers, you are joining your services at a transformative moment in India's developmental journey. The convergence of emerging technologies, rapid information dissemination, and shifting global landscapes present a complex yet existing environment. Your role will be vital in inclusive development of India and in making it globally more competitive. You should always adopt and promote the citizen-centric approach while performing your duties. You must keep in mind the needs and aspirations of the deprived and underprivileged sections of the society while taking decisions. Your thoughts, decisions, and actions will significantly influence the future trajectory of the nation. I am confident that you will rise to the challenges, leveraging your skills, expertise, and creativity to make a meaningful impact. I extend my best wishes to you all for a bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय जगन्नाथ नमस्कार। राष्ट्रपति हेबा परे निज माटीकू यह मोर प्रथम आगमन। यही अवसर में आपण मानक हार्दिक अभिनंदन, स्नेह और श्रद्धा मते अभिभूत करिस। निज माटीर महकरे भिन्नता अच्छी। निज राज्यर पानी और पवनर आकर्षण भिन्न एवं निज अंचल दिग दिगंतर सौंदर्य नियारा। तेणु आज ओडिशा आसी मु अत्यंत आनंदित। महामहिम राष्ट्रपति आपन को आम विद्यालय को सुस्वागत। धन्यवाद।